A very good afternoon, everyone. So let's start with the webinar. Seva Sutra warmly welcomes our speaker and everybody for the most awaited webinar on social stock exchange, a revolution in social funding. The government plans to set up a social stock exchange for not-for-profit organizations and for-profit social enterprise. Is this a good idea? Will it work? Who benefits? Who loses? Let's hear from our expert speaker who doesn't need any introduction, a very Oh renowned my fucking person, god. Yesa Rupanjana ji. She's a practicing company secretary, a qualified lawyer, independent director, a teacher, a trainer, a writer of many books, associate member of MLA, former secretary EIRC, ICSI, and most importantly, an expert in CSR. Over to you, ma'am. Thank you very much. I hope somebody at your end, Seva Sutra may, check the, the participants for, in case if somebody has to be muted, just check, if some sounds are coming, just you have to be alert, huh? Yes, sure, ma'am. I'll check. Yeah. Okay. So should I speak in English only? Is that okay with everyone, all the participants? I hope that is fine. Ma'am, we can have a mix of Hindi, English, Bengali. Okay. So like maybe I'll try a mix of Hindi and English, because, when I am speaking, I'm not used to, deliberating in Bengali, although that is my mother tongue. Like, so, okay, I'll try Bengali, Hindi and English. So yes, this stock exchange, social stock exchange concept has been introduced by the SEBI. The technical committee report of SEBI has come, and it mentions that the opening of social stock exchange, where certain social entities will be registered, and these may be NGOs. This essentially will be NGOs who will list there, but also like for-profit enterprises. For example, a certain company which is not a Section 8 company or a society or a trust, but which has developmental activities amounting to 65% of its turnover. So that company can, although the remaining 35% is for profit activities, even then that organization, that entity can get itself registered as a social entity in the social stock exchange. Now, what will the social stock exchange essentially do, and why is this concept, so like in India, we have this now companies, we have almost 1 crore number of companies. So we think that companies are really big in number, but when this social enterprises, the NGOs go, they don't get the particular attention that they need. You and me, all of us know about some social entities, some NGOs. All of us know about, not some, each one of us may be knowing at least 10 NGOs. So we know about them, but then they do not get the kind of attention, the focus that they deserve, unless they really end up doing something extraordinary. But even if the social work that you are doing, जो काम हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अगर बड़ा है, तो वो फुटेज, वो माइलेज मिल जाता है एनजीओ को. बट नॉर्मल जो एनजीओs है, they are also doing good work, maybe in a lower scale, but on a continuous basis. So they go unheeded, unnoticed, but they need the funding to keep doing that good work. And
in today's age, the social thanks, first of all, thanks to MCA that it mandated the CSR provisions, which made a permanent source of funding for NGOs, because companies which come under CSR are required to give fund, spend certain amount of their, so 2% of their average annual profits for the last 3 financial years on social activities. So until the last 5-6 years, from 1st of April 2014 till 31st of March 2021, there was not really any compulsion that जो company को खर्चा करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था, because वो मैंडेटरी नहीं था, ये कंप्लाई और एक्सप्लेन अप्रोच था. सो एक कंपनी खर्चा करने का कोशिश उसको करना ही है, उसको करना ही पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो खर्चा नहीं कर पाया, जो कि हो सकता है कि उसका मन ही नहीं था खर्चा करने का, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो अगर वो खर्चा नहीं किया या खर्चा नहीं कर पाया, सो उसके लिए ये पॉसिबल था कि they could mention it in their director's report that we tried but हमारे ये कारण थे, इसलिए हम लोग पूरा अमाउंट जो हमारे लिए मैंडेटरी था वो खर्चा नहीं कर पाए. सो 31st of March 2021 तक ये सिचुएशन था. उसके बाद ये पेनल्टी लागू हुआ, और आज के डेट में पेनल्टी इज कोई कंपनी जो पैसा उसको खर्चा करना चाहिए और खर्चा नहीं किया, उसका वो बैलेंस अमाउंट, वो अनस्पेंट अमाउंट, माने उसका 2 times ऑफ दैट अनस्पेंट अमाउंट और 1 crore rupees whichever is less, उसको पेनल्टी देना पड़ेगा. सो मान लेते हैं कि खर्चा हमको 60 lakhs rupees खर्चा करना था, हमने नहीं किया, तो 2 times ऑफ 60 lakh इज 1 crore 20 लाख. तो हमको 1 crore 20 लाख और 1 crore दोनों में जो कम है, विच इज 1 crore ही कम है, सो वो हमको पेनल्टी देना पड़ेगा. सो कोई भी कंपनी पेनल्टी देना नहीं चाहेगा, क्योंकि पेनल्टी का मतलब ये है कि वो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है और इसमें कंपनी का कोई क्रेडिट नहीं रहता है. बट यही पैसा अगर हम लोग CSR में ही खर्चा करेंगे, तो फिर एटलीस्ट कंपनी का नाम होगा कि 1 crore रुपया या 60 लाख रुपया जो भी है खर्चा किया कंपनी ने. तो मान लेते हैं कि किसी ने वाटर ATM लगाया रास्ते के ऊपर, तो उसका नाम रहेगा कि ABC लिमिटेड has sponsored this ATM under CSR. या फिर कोई गार्डन मेंटेन कर लेते हैं, या फिर कोई भी एक अच्छा काम कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, माने एक एडवर्टीजमेंट भी हो जाता है, एक फ्री का एडवर्टीजमेंट भी हो जाता है. सो आज के डेट में क्योंकि ये पेनल्टी कंपलसरी हो गया है, आज के डेट में लास्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करके कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि CSR करने के बजाय वो पेनल्टी दे. तो आज के डेट में NGOs के लिए दिस इज अ बेनिफिट कि CSR का फंड जरूर मिलेगा. बट देन अगेन आज के डेट में कंपनीज, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ये चाह रही है कि वो अपना पैसा खुद ही खर्चा करें. थोड़ा बहुत इधर उधर NGO को कंपनीज देते हैं, बट वो खुद खर्चा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जो प्रोजेक्ट वो लोग खुद खर्चा करके करेंगे, वो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि उनका अपना विजिबिलिटी ज्यादा रहता है. तो कंपनी उसको अपना एनुअल रिपोर्ट में उसको फोकस करती है कि हमने ये किया, ये हमारा CSR प्रोजेक्ट था. तो वो अगर किसी NGO के थ्रू होता है तो प्रॉब्लम ये आता है कि वो NGO का भी नाम आता है बीच में. तो कंपनी अपना वो उस जिस लेवल तक एडवर्टीजमेंट कर पाती थी वो CSR का, तो वो नहीं कर पाती अगर NGO इन्वॉल्व होता है. सो एक टू सर्टेन एक्सटेंट ऑल कंपनीज विल गिव सम मनी टू NGO, बट अ मेजर शेयर आज के डेट में कंपनी खुद ही खर्चा करेगा. छोटे छोटे कंपनी जिनका बजट कम होता है CSR का जो रिक्वायरमेंट, जैसे कि किसी का 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 15-20 लाख तक कंपनीज प्रिफर करते हैं खुद इतना दिमाग नहीं लगाए, किसी के थ्रू करा ले. तो NGOs के लिए वो अपॉर्चुनिटी है ऐसे कंपनीज को अप्रोच करके अपना फंडिंग उधर से ले. सो ये अपॉर्चुनिटी है, बट ये तो अभी तक था.
अभी ये जो सेबी का स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज आया है, इससे एनजीओस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन और भी बेटर हुआ है। कैसे हुआ है? बिकॉज सीएसआर अंडर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 के अंदर जो सीएसआर है, उसमें एनजीओस को डोर टू डोर, ऑलमोस्ट लिटरली डोर टू डोर घूमना पड़ता है कि हमें फंड की रिक्वायरमेंट है, हमें फंड दे दीजिए, ऐसा ऐसा करके। सो that involves a very strong marketing NGOs के लिए भी, which is difficult to imagine from the point of view of an NGO. It is very difficult. So आज के डेट में जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें ये चीज आसान हो जाएगा। कैसे होगा कि एक एनजीओ जो स्टॉक एक्सचेंज में, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराता है, पहले तो उसमें बहुत सारा चीजें इन्वॉल्व होगा, जैसे कि उसका सोशल ऑडिट कराना पड़ेगा। कोई भी एक लिस्टिंग में, हम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं हम जानते हैं कि कोई भी लिस्टिंग में बहुत सारा कंप्लायंस इन्वॉल्व होता है, प्री लिस्टिंग कंप्लायंसेस इन्वॉल्व होता है, पोस्ट लिस्टिंग तो होता ही है। तो जैसे सेबी एलओडीआर मान के चलना पड़ता है फॉर ऑल द लिस्टेड एंटिटीज। अभी सेबी विल आल्सो कम आउट विद अ लिस्टिंग रेगुलेशन फॉर सोशल एंटरप्राइजेस। सो एक बार अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज नोटिफाई हो गया, अभी बनेगा, सोशल ऑडिट का स्टैंडर्ड बन रहा है। वो बनने के बाद फिर नोटिफिकेशन आएगा कि नाउ सोशल स्टॉक एक्सचेंज बन गया है, नाउ फॉर्मली सोशल एंटिटीज कैन रजिस्टर। नाउ सोशल एंटिटीज रजिस्टर करने से सो लिस्टिंग से पहले क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट है वो आएगा, उसका डिटेल गाइडलाइन आएगा। तो उसमें 100% ये रहेगा कि सोशल ऑडिट कराना पड़ेगा। तो सोशल ऑडिट जो है, सो इसमें मैं थोड़ा सा मैंने लाइट थ्रो करना चाहूंगी। सोशल ऑडिट इज लाइक एक कंपनी जो है, मान लेते हैं कोई भी एक, जैसे सेक्शन शेड्यूल 7 आज के डेट में सबको मालूम है, शेड्यूल 7 का जो जो एक्टिविटीज है, जो एरिया से हम सबको सब जानते हैं। तो वो वही, उसी में से वही मोरलेस ये सेबी में भी जो करते हैं हम लोग, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो लिस्ट होंगे, मोरलेस यही सब एरियाज में काम करने वाले स्टॉक सोशल एंटरप्राइजेस ही लिस्ट होंगे। नाउ ये कहाँ से आता है? दीज आर बेसिकली फ्रॉम SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हम सबको मालूम है, उसके बेसिस पे हमारे देश का जो नीति आयोग है, जो पहले प्लानिंग कमीशन कहलाता था, तो नीति आयोग ने एक SDG बनाए हैं कुछ बेस्ड ऑन UN SDG। UN में, यूनाइटेड नेशन में 17 SDGs है। SDG स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ उसके बाद उसके बेसिस पे इंडिया में 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बने हैं, एंड वही गोल्स को टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के नाम से सेबी ने क्लासिफाई किया है। सो मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्लासिफिकेशन नंबर 1 हो गया एडुकेशन, द एडुकेशन सेक्टर। आप रिलेट कर सकते हैं, शेड्यूल 7 में भी हमारे पास एडुकेशन सेक्टर में इज अलाउड फॉर CSR एक्टिविटीज। फिर आ जाता है जैसे कि पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन, सैनिटेशन, विमेन एम्पावरमेंट। तो ये सब ये सारे एरियाज हैं जो कि एक टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन सेबी ने दिया है बेस्ड ऑन दिस। यहाँ म्यूट है, यहाँ पे ऊपर में। Can you please ask everybody to mute it, because it's very irritating for me, if I can hear that people speaking. विक्रम जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। विक्रम जी। Okay, so उसमें क्या होगा कि वो जो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन है वो 16 एरिया है। उसमें से एक बहुत बड़ा एरिया है, जो 5 नंबर एरिया है, दैट इज अ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सो उसमें मैंने काफी काम किया हुआ है, मैं उसमें बाद में आऊंगी। तो अभी क्या है, ये जो सोशल एंटरप्राइजेस जो इस 16 एरिया में काम कर रही है, तो उनको पहले तो एक ऑडिट कराना पड़ेगा कि उनका जो काम हो रहा है किस हद तक
वो लोग काम कर रहे हैं। सो वो ऑडिट रिपोर्ट अभी क्या है ये, बिकॉज एज ऑन डेट वो सीए इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये ऑडिट का जिम्मेदारी दिया गया है। सो बट बिकॉज ये सब चीज एकदम नेसेंट स्टेज में है एज ऑन डेट, और अभी बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ नया आएगा, एंड अभी से हम लोग कोई डिसाइसिव कुछ बोल नहीं सकते हैं कि यही होगा, फ्यूचर में कुछ नया कुछ एडिशन नहीं होगा। सो अभी एज ऑन डेट जो भी है उसी की बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। सो ये लिस्टिंग जो है, ये लिस्टिंग एक बार करा लेने के बाद क्या बेनिफिट होगा, ये जो कंपनी जो सोशल एंटरप्राइजेस है वो आईपीओ, जैसे लिस्टेड कंपनी आईपीओ ला सकता है, सो लिस्ट सोशल एंटरप्राइजेस आल्सो कैन कम आउट विथ आईपीओस। सो दे विल essentially come up with zero coupon, zero principal bond। अभी हाल ही में हम लोगों का एमसीए में एक नोटिफिकेशन आया कि सिक्योरिटीज का जो डेफिनेशन है इन द कंपनीज एक्ट, इन द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, बेसिकली कंपनीज एक्ट में जो सिक्योरिटीज डेफिनेशन है दैट इज एज पर डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट। तो उसमें डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड। नाउ ये क्या है, दिस वाज एन एरिया वेयर द सेबी, बिकॉज सेबी इज अ रेगुलेटर, एमसीए इज आल्सो अ रेगुलेटर, एंड इन दोनों में थोड़ा सा इसमें डिसएग्रीमेंट था, दे वर नॉट कमिंग टू वन सिंगल पॉइंट ऑफ डिसीजन। तो ये जब तक नहीं हो पा रहा था तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक सोशल एंटिटी जो है वो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स तो इशू नहीं करेगी, वो ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स जो है वही इशू कर सकती है। सो नाउ ये पॉइंट क्लियर है, ये इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज। अब जो कंपनी लिस्ट होगा दे कैन इशू दीज, एंड वी द पीपल, यू नो, नॉट जस्ट कंपनीज, खाली कंपनीज नहीं, हम लोग इंडिविजुअल बेसिस पे भी हम लोग उसमें यूनिट्स खरीद सकते हैं। सो मान लेते हैं ऐसा एक एग्जांपल, जैसे कि आज के दिन में हम लोग एज इंडिविजुअल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हम लोग भी बहुत दान करते हैं। कोई रामकृष्ण मिशन को दान कर देते हैं, तो कोई माने कोई दूसरा माने छोटा मोटा एनजीओ, या फिर जैसे कि एनजीओ में ही हम लोग खाली 80G का हमको बेनिफिट मिल जाता है तो उसमें 5, 10, 20 हजार तो हम लोग दान कर देते हैं, हम लोग ऐसे गरीब को भी देते हैं। सो वी हैव दिस टेंडेंसी, पूजा के टाइम में हम लोग मंदिर में भी दे देते हैं, तो वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ गिविंग दिस दान। So now people, youngsters, people of any age, चाहे वो अपने जन्मदिन में हो, घर में किसी का एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी किसी में हो, कोई भी एक शुभ अवसर पर हम लोग यू नो वी कैन थिंक अबाउट बाइंग द यूनिट्स ऑफ दीज सोशल एंटरप्राइजेस। नाउ मान लेते हैं एक एनजीओ है, लेट्स से एबीसी ट्रस्ट। सो ये जो एबीसी ट्रस्ट है आज की डेट तक क्या कर रहा था, एबीसी ट्रस्ट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू डू सीएसआर। उनके ऊपर डिपेंडेंट था कि हमको पैसा दो, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमारे माने गांव में स्कूल है या फिर स्लम्स में स्कूल है, हम लोग एजेड महिलाओं को कपड़े और कंबल देते हैं, तो जो भी है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो इसके लिए ये एबीसी ट्रस्ट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन कंपनीज टू गिव देम द सीएसआर फंडिंग। और रिसेंट इयर्स में क्योंकि सीएसआर बहुत ज्यादा माने स्पेशलाइज्ड हो गया है कंपनीज की तरफ से, बिकॉज कंपनीज ऑलवेज वांट कि कुछ यूनिक करे, कुछ अलग करे, यू नो, ऐसा कुछ करे जो कि अपना रिपोर्ट में, बोर्ड्स रिपोर्ट में लिखने के बाद शेयर होल्डर्स इसको प्रेज करे कि वाह बहुत अच्छा काम है, बहुत अलग टाइप का काम है। तो इसलिए कंपनीज नॉर्मल जो चैरिटेबल वर्क है, जैसे मैंने अभी बताया, एग्जांपल दिया, वैसे काम के लिए पैसा कम ही देती है, अनलेस दैट कंपनी को या तो सीएसआर रेगुलेशंस के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि सीएसआर रेगुलेशन डोनेशन के अगेंस्ट में है। सीएसआर रेगुलेशंस इन द कंपनीज एक्ट सेज दैट डोनेशन इज नॉट सीएसआर। तो बहुत सारे कंपनी को ये मालूम ही नहीं है, वो लोग डोनेशन दे देते हैं एनजीओ को कि ठीक है 5 लाख रुपया मुझे सीएसआर करना है, आप ले लो, कुछ कर लो।
हमको बता देना क्या क्या हम दे देंगे। तो ये जो डोनेशन का जो ये सिलसिला था, तो आज के डेट में ये डोनेशन माने सबको, बहुत सारे कंपनीज को अभी मालूम हुआ है, क्योंकि ये पेनल्टी इंट्रोड्यूस हुआ है अभी। आज के डेट में कंपनीज को मालूम है कि डोनेशन इज नॉट CSR। अगर कोई कंपनी डोनेशन करता है थिंकिंग दैट सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर ये वैलिड CSR स्पेंडिंग होगा। सो अभी जैसे कि 30 सितंबर आ रहा है, एंड 30 सितंबर 2022 के बाद ही डिसीजन होगा। मैंने सब कंपनीज को मालूम होगा कि एक्चुअली डोनेशन इज नॉट CSR, बिकॉज ऐसे कंपनीज को पेनल्टी लगने वाला है, बिकॉज दे हैव नॉट कंप्लाइड विद द CSR रेगुलेशंस। सो डोनेशन धीरे धीरे बंद होता जाएगा। तो नाउ सोशल एंटरप्राइजेस विल हैव टू think about how to renew their approach, and social and in माने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करना है कि सोशल एक्सचेंज में कैसे करना है। सो वो अलग हो गया, बिकॉज अभी जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे लिस्टिंग के, तब मालूम होगा कि उसका रूल्स रेगुलेशंस क्या है। सो मैंने आई वुड सजेस्ट कि जो जो एंटिटीज है, जो जो काम कर रहे हैं सोशल एंटरप्राइजेस, तो उनको लिस्टिंग करा लेना बेटर है, बिकॉज कंपनीज का फंडिंग अगर कम हो जाता है, एटलीस्ट इंडिविजुअल्स का फंडिंग आता रहेगा, बिकॉज सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू IPO करके कंपनी कैन द NGO कैन सेल इट्स यूनिट्स, एंड वो पब्लिक से पैसा आएगा। अभी जो ये जो 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड जो मैंने बताया, जो अभी ये हुआ है, मैंने अलाउड हुआ है MC की तरफ से, दैट इज इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो आज के डेट में अगर मैं पैसा दे रही हूँ 1000 रुपए यही ABC ट्रस्ट को, मैंने देखा, मैंने अब देयर इज अ लिस्ट ऑफ, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट होता है जैसे कि सारे कंपनीज विच आर लिस्टेड, सो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट होगा। सो वहां पे भी जाके मैं देख सकती हूँ कि कौन सा कंपनी किस एरिया में काम कर रही है। सो मुझे जिस एरिया में काम कर पसंद है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में मैं बहुत ज्यादा, मेरा मैंने बहुत ज्यादा डेडिकेशन है। आई वांट पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड वगैरह वगैरह। हर किसी का एक अपना चॉइस का एरिया होता ही है। सो अगर मुझे जो एरिया पसंद है, उस एरिया में जाके मुझे जो कंपनी, जो NGO मुझे मिलता है, सो उसका मैं कोई यूनिट्स मैं खरीद लेती हूँ। मान लेते हैं कि मैं 1000 रुपए ले लेती हूँ, खरीद लेती हूँ। देन आई हैव टू फॉरगेट दैट 1000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 10 years। 10 साल के बाद वो 1000 रुपए मुझे वापस मिल जाएगा। सो वी ऑल नो कि आज का 1000 रुपए और 10 साल के बाद का 1000 रुपए इज नॉट द सेम थिंग, एन्युटी फैक्टर होता है। सो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग बैक लेस, मुझे कम मिल रहा है। सो बट फिर भी मिल रहा है। आज के डेट में सोशल वर्क अगर हम लोग कुछ करते हैं, कोई चैरिटेबल काम में डोनेशन देते हैं, वो हमको कभी वापस नहीं मिलता है, हमको वापस चाहिए भी नहीं होता है। तो इसमें हमको वापस मिल जाएगा इवन इफ वी डोंट वांट। तो जब हमको मिलेगा वो, उसको हम किसी और सोशल एंटिटी में जमा कर सकते हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी है। सो मेरा सजेशन तो यही है कि सारा सोशल एंटरप्राइजेस सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का तैयारी करे, क्योंकि ये आ रहा है और ये फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में ही इसको मैंने ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करना है। बिकॉज हर कोई चीज इनिशियली इजी होता है, जैसे जैसे माने टाइम पास होता है वो डिफिकल्ट होते जाता है। तो हो सकता है कि जब ये नोटिफाई हो सोशल स्टॉक एक्सचेंज फाइनली, तो उस टाइम में शुरू में रिलैक्सेशन हो एंड धीरे धीरे वो और भी स्ट्रिक्ट हो जाए। तो जो जो NGOs शुरू में ही वहां पे लिस्ट करा लेंगे अपने आप को, तो उनका एक फर्स्ट मूवर बेनिफिट होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा, और पब्लिक से उनको डोनेशन भी अच्छा मिलेगा, और उनका जो काम है वो काम करने के लिए वो मोटिवेशन, फंडिंग जो भी चाहिए होता है वो मिलेगा। प्लस सबसे बड़ा एक और चीज है कि ये जो विजिबिलिटी और विजिबिलिटी इन द मार्केट जो नहीं है आज के डेट में NGOs को, unless you are a Akshay Patra Foundation or a Hope Foundation, a very big name in this line, so उनका नाम है मार्केट में। बट बहुत सारे ट्रस्ट है, सोसाइटीज है, सेक्शन 8 कंपनीज है, who are doing really good work, बट क्योंकि वो लोग
छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं एंड दे आर रियली डूइंग गुड वर्क, बट यू नो दे डोंट हैव दैट विजिबिलिटी एज ऑफ नाउ. सो विजिबिलिटी नहीं होने का कारण क्या है? उनका माने फंडिंग कम हो जाता है. सो जिस लेवल पे वो लोग काम कर सकते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल तक. सो दिस इज द थिंग. अभी इसमें जाके और कुछ अगर क्वेश्चंस होगा, आई थिंक बिकॉज पार्टिसिपेंट्स है उनका भी क्वेश्चंस हो सकता है, एंड एवरी क्वेश्चन might take time for me to answer also. So can we start with the questions, Bhavna, or if there's any questions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can start with the question. Participants के पास अगर कोई question है तो they can raise their queries in this area. I can see one hand raised. Yeah, good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. So one query regarding like whatever fundraising can be done through these exchanges. So these would be basically income and expenditure item. Basically, it will be a contribution to be utilized for CSR activity. It will not be a balance sheet item. Pardon? It will not be? It will not be a balance sheet item. Like it will not be a corpus amount, but it will be a grant or contribution towards taking up the CSR activities. So am I correct? Like only for the purpose of grant donations, which will be part of income and expenditure item. So that only can be raised through these exchanges. Correct. You are talking about like the fund given by the company or whom? By the public to the company, like whatever fund the company is able, the foundation or Section 8 company or NGO is able to raise through these stock exchanges. So this will be only treated as a donation or grant. Okay. Now I get your question. Now, हाँ, जो मैंने अभी जैसे बोला कि ये जो रेगुलेशंस, डिटेल रेगुलेशन है वो अभी क्लियर नहीं है. सो आई बिलीव वो खाली ग्रांट के लिए नहीं होगा, बिकॉज एक एनजीओ को चलाने के लिए भी तो पैसा का जरूरत होता है. सो आज के डेट में जो CSR रेगुलेशंस है, जो कंपनीज एक्ट के अंदर CSR है, उसमें इफ यू सी एनजीओ का अपना खर्चा के लिए कुछ नहीं है. सो उसमें कहा जाता है कि 5% एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मैक्सिमम हो सकता है एंड 5% इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम. लेकिन जैसे कि बहुत सारे एनजीओस मैंने देखा है कुछ दिन पहले तक, जब वो लोग कॉस्ट एस्टिमेट भेजते थे कंपनीज को, उसमें स्टाफ का सैलरी, सुपरवाइजर का पेमेंट, ये सब देते थे. सो बट कंपनीज एक्ट डज नॉट अलाउ दैट. तो ये एनजीओस को ये सब कहाँ से चलाएं? तो एनजीओस को अगर प्रॉपर ऑडिटिंग होता था तो उसमें एनजीओस को ये नॉन CSR ग्रांट से ये सब देना पड़ता था, बिकॉज CSR वाले ग्रांट में ये ऑडिटर अप्रूव नहीं करेगा. तो ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा माने कंपनी रेज करेगा, my belief is that is for the entire NGO, not just for the CSR activities, for towards like social developmental activities. It should be for the NGOs running also. Ideally वो होना ही चाहिए, otherwise कैसे चलेगा? NGO चलाएगा कैसे अपने आप को? So उसका कुछ अभी ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं आया है कि हाँ इस पर्पस के लिए लेना है तो इस चैनल से आप रेज करें, इस पर्पस के लिए लेना है तो दूसरे चैनल से रेज करें, ऐसा भी वो अभी तक नहीं आया है. बट जब आ जाएगा, आने के बाद अगर ये नहीं भी होता है, माने वैसा अगर मेंशन नहीं भी होता है, तो आई थिंक बिकॉज कोई भी नया लॉ में लूप होल्स तो होते ही हैं, कमियां होती ही है. सो वो मेरे ख्याल से स्टेक होल्डर्स का जो सजेशंस जाता है उस हिसाब से चेंज भी होता रहता है. तो क्योंकि नया लॉ होगा, यू कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी सम deficiencies in the law, but let's hope, because SEBI is coming up. SEBI has learned from the experience of MCA का जो CSR का एक्सपीरियंस है, उससे SEBI को ये एडवांटेज है कि they have already the knowledge of कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है. So let's hope कि उस कारण SEBI का जो रेगुलेशन होगा ये थोड़ा सा डिटेल्ड होगा एंड थोड़ा सा लेस डेफिशिएंसीज वहां पे होगा. Let's hope that.
बट आ जाएगा बाय दिसंबर 2022 एवरीथिंग विल बी देयर, बिकॉज अभी आज के डेट में सोशल स्टॉक एक्सचेंज सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स बन रहा है, वो अप्रूव हो जाएगा 1 महीने के अंदर, 1 या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर। वो अप्रूव हो जाने के बाद देन द नेक्स्ट थिंग इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज, और सोशल स्टॉक एक्सचेंज फिर देन सेबी एलओडीआर फॉर द सोशल एंटरप्राइजेस भी आ जाएगा, बिकॉज आज की डेट में जो सेबी एलओडीआर है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, दैट इज फॉर कंपनीज, फॉर प्रॉफिट कंपनीज, तो ये पैरेलल उसके लिए एक आएगा। Okay. And do you think, like, suppose if I am an individual and I give say 50 lakh to one NGO through this channel, and maybe after 1 month or so I feel that the NGO is actually in spirit not taking up those activities for which the fund was basically given, so whether I will have any choice to call the money back, unspent That amount at also, least? see, that also will be there. Now the question is, you as a company, are you giving the money to the NGO from your CSR fund? Because यहाँ पे क्या है, दो जो रेगुलेशन है, ये एक मिलन हो रहा है यहाँ पे कि I as a company might want to give my CSR fund to them, so that मेरे CSR जो obligation है वो fulfill हो। तो ये करने में कहाँ तक एमसीए राजी होगा इसमें, बिकॉज आज के डेट में ये जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है कि एवरी 31st ऑफ मार्च के अंदर कंपनी जो जो खर्चा करती है वो कंपनी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि यस आई हैव स्पेंट दिस मनी। वो अगर एनजीओ को दिया है तो एनजीओ से भी वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सीए इंस्टीट्यूट ने एक गाइडलाइंस इशू किया था अपने मेंबर्स को कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के टाइम में क्या क्या चेक करें। और एनजीओस को भी बोला गया था कि व्हेन यू गिव द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपका जो सीए है उससे दिलवाइए। तो इसमें क्या है, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देगा दैट पर्सन इज नॉट अ नोविस, दैट पर्सन इज अ प्रोफेशनल। तो वो प्रोफेशनल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देगा और कंपनी उसको यूज करेगा। तो जैसे कि इस कंपनी ने द एग्जांपल दैट यू गिव 50 लाख ने दे दिया था कंपनी ने, एंड वो 50 लाख खर्चा नहीं हुआ है, तो कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी शुड नेवर डू दैट दिस काइंड ऑफ अ थिंग कि एनजीओ को, एक एनजीओ से काम मैं कराना चाहती हूँ, दैट इज अ गुड थिंग, वो अच्छा चीज है। बट माने यहाँ पे अगर एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव्स भी है सो दे उनको भी ये पता होना चाहिए, बिकॉज कंपनी धीरे धीरे, बिकॉज ये पेनल्टी अभी चालू हो गया है कंपनीज के लिए जो सीएसआर फंड आपको देंगे उनके लिए जो ये चालू हो गया है, सो आफ्टर दैट कंपनीज विल बी वेरी केयरफुल इन गिविंग द फंड। वो आपसे एक एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस मांगेंगे, फिर उसके बेसिस पे वो लोग धीरे धीरे पैसा रिलीज करेंगे। अगर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 50 लाख, वो लोग शायद पहले 5 लाख देंगे, बोलेंगे 5 लाख पहले खर्चा हो जो फर्स्ट स्टेज है, देन यू गिव मी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद एक और 5 लाख देंगे। सो कोई भी कंपनी आज के डेट में ये पेनल्टी आने के बाद आपको 50 लाख एट वन को नहीं देगा। सो ये स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट होने के बाद भी ये अगर कोई करेगा तो ये उसके लिए बेवकूफी होगी, ये करना नहीं चाहिए। सो धीरे धीरे ही देना बेटर रहेगा। Got it. So if the regulations are expected say by December end, so do you think that by 1st of April the exchange will be operational or even before that? SEBI is actually going very fast. SEBI is going very fast and is very serious in that. So हमारे लिए, माने हमारे कंट्री के लिए या फॉर द एनजीओस के लिए ये अच्छी बात ये है कि हमारे देश में पहले एक रेगुलेटर था सेबी माने सीएसआर के लिए, आज की डेट में दो रेगुलेटर है, और दो रेगुलेटर होने का एक बेनिफिट ये है दोनों में कंपटीशन भी होगा। So MCA will like to do better CSR work and SEBI will like to do better. So इसमें क्या है, फायदा एनजीओस को भी है और एज अ सिटीजन इंडियंस, हम एज इंडियंस को भी है। द कंट्री ऑल्सो बेनिफिट्स बिकॉज बेटर वर्क होगा। और सोशल ऑडिट आ रहा है तो जो काम हो रहा है वो एक्चुअली कितना इम्पैक्टफुल हो रहा है उसका भी हमको पता चलेगा। तो रियली जैसे कि आप बोले एग्जाम्पल 50 लाख, कंपनी इज नॉट डूइंग इट इन स्पिरिट ओनली इन लेटर। सो ऐसा भी आइडेंटिफाई होगा कि कौन एनजीओ ठीक ठाक काम कर रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, कौन सा प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हुआ। सो ये सब आ जाएगा। Thank you, ma'am. थैंक यू Ma'am, we have some more questions. हाँ, From Sudha Kumari from Gokul Mandayam. या प्लीज टेल मी भावना। हाँ,
Gokul ji बोल रहे हैं, is the social stock exchange more geared towards streamlining the impact of social service activities, that is outcome measurement etc., as opposed to random charity actions? Yeah, that is 100%. Random charity action को स्टॉप करने के लिए ही सी आई स्टार्ट विद एमसीए का एग्जांपल वंस अगेन। ये जो अभी पेनल्टी स्टार्ट हुआ है उसके भी पीछे कारण यही है कि रैंडम चैरिटी एक्शन को स्टॉप करके मोर इम्पैक्टफुल सोशल सोशल डेवलपमेंट वर्क हो, उसी के कारण ये पेनल्टी इम्पोज हुआ है आज के डेट में सीएसआर अंडर एमसीए जो है कंपनीज एक्ट में। और स्टॉक एक्सचेंज में से सेबी भी जो बता रहा है, तो सेबी बिफोर कमिंग आउट विथ द एंटायर रेगुलेशन, सेबी इज टॉकिंग अबाउट सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स। सो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड इज बेसिकली द स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द सीए इंस्टीट्यूट। सीए इंस्टीट्यूट में ये ड्राफ्टिंग कमेटी था, उसमें आई एम पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। सो उस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये था कि जो 16 एरियाज है जो मैंने बताया जिसमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकते हैं, जिस एरियाज में काम करने वाले एनजीओज, सो वो 16 एरियाज में जब सोशल ऑडिटर जाएगा ऑडिट करने, तो वो क्या क्या चेक करेगा कि आप बोल रहे हो आप लिटरेसी पे काम कर रहे हो या रूरल एजुकेशन में काम कर रहे हो, तो क्या क्या किया आपने, माने आपका सैंपल साइज क्या था, स्कूल बनाने के लिए आपने बोला था, स्कूल कैसा बना, कितना टाइम लगा, क्या क्या क्लासेस है, कितने टीचर्स है, टीचर्स को क्या ट्रेनिंग दिया गया, टीचर्स कितना टाइम देते हैं, टीचर्स को फीस कितना देते हो, टीचर्स के अगेंस्ट में पर टीचर कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का स्कूल में आने से पहले उनका सोशल स्टेटस क्या था, स्कूल में आने के बाद क्या है, वो लोग पहले क्या सोचते थे, आप अब क्या चेंज हुआ। तो ये सब पैरामीटर्स लड़कियां कितने हैं, लड़के कितने हैं, एज ग्रुप क्या है, सो ये जो पैरामीटर्स है दीज आर, मैंने खाली एक एग्जांपल ही दिया ये एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले एनजीओ के लिए सोशल ऑडिट कैसा होगा। सो ऐसे 16 टोटल एरियाज है। तो जैसे मैंने पर्टिकुलरली काम किया है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, सो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल एक एरिया है, बहुत ज्यादा, बिकॉज क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये बहुत साइंटिफिक चीजें हैं सो यहाँ पे पोल्यूशन मेजर करना, तो माने वेस्ट ट्रीटमेंट है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट ट्रीटमेंट का ही बहुत सारा अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग लेवल होता है। तो इसमें जो ऑडिटर जो जाएगा वो ऑडिट क्या करेगा, उसको क्या चेक करना है कि ये एनजीओ सच में अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये इसीलिए होगा क्योंकि सेबी वांट्स कि जो मोर इम्पैक्टफुल काम हो, कि खाली नाम से ही हम एनवायरमेंट पोल्यूशन बोल रहे हैं कि हम वी आर वर्किंग फॉर एनवायरमेंट पोल्यूशन सस्टेनेबिलिटी, और हम लोग खाली हर जगह पे एक एक डस्टबिन लगा दिए एंड वी आर सेइंग कि वी आर डूइंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सो मैंने एक डस्टबिन मैंने लाइक आफ्टर सर्टेन मैंने सर्टेन डिस्टेंस मैंने डस्टबिन लगा दिया, तो दैट डजंट मीन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। वो कितना अच्छा डीप रूटेड मेरा काम है, कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, सच में वो डस्टबिन लगाने का उधर लगाने का मतलब है कि नहीं, वो डस्टबिन से लगाने से कोई अच्छा कुछ हुआ भी है कि नहीं, उधर रिक्वायरमेंट था कि नहीं। तो ये सब बेसिकली देखना ही, सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके मालूम होगा कि ये एनजीओ सच में अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, इज दिस एनजीओ रियली एलिजिबल टू गेट फंडिंग फ्रॉम द पब्लिक। तो सेबी का यही है रिक्वायरमेंट, माने कि पहले दे वांट टू सी हु आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है देन दीज एनजीओ शुड बी सपोर्टेड बाय फंडिंग। सो रैंडम चैरिटी चला जाएगा, अभी नहीं होगा। Ma'am, Sudha Kumari has also one question. Yeah, tell me. If NGO is not eligible for CSR grant because of 3 years obligation, then how it can get benefit from SEBI? हाँ, वो सेबी वाले में तो देयर इज नो दिस क्वालिफिकेशन 3 ईयर वाला थिंग सेबी में नहीं है। सेबी स्टॉक एक्सचेंज जो है,
social stock exchange. As of now, there is no requirement of having a 3-year track record. So बाद में आएगा कि नहीं, I don't think आएगा, but 1 year तो minimum आएगा ही, because otherwise how will the auditor come and audit your social activities so that you are eligible for listing. कुछ तो जैसे कि हम लोग नॉर्मल लिस्टिंग भी जब होता है, वी सी द बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर्स एंड ऑल दैट. सो माने कुछ तो बैकग्राउंड हमको दिखाना ही पड़ेगा कि हाउ गुड एक्टिविटीज वी हैव डन. सो हो सकता है कि 3 year एलिजिबिलिटी वाला इधर नहीं रहे, बट कुछ एटलीस्ट 1 year का तो रहेगा. सो इन दैट केस द बेस्ट आइडिया फॉर this kind of organization, सुधा कुमारी जी जैसे बोल रहे हैं, मेरा सजेशन ये होगा कि you be associated with a company. जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी है जिसका CSR फंड है, and let them do the CSR. आपके थ्रू वो CSR करें, आपको कोई सर्टिफिकेट या कुछ दे दें, बट आप उसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नहीं बन सकते बिकॉज आपका 3 years का एक्सपीरियंस नहीं है. So the company will do in its books, the company will show that it is doing the CSR directly on its own, but आपका help लिया, आप माने you have volunteered और जैसे भी हो, you have associated with them. So इससे क्या होगा कि आपका experience में वो count हो जाएगा, लेकिन you are not an implementation partner, because implementation partner बनने के लिए आपको 3 साल का experience है. So ऐसे अगर आप 3 साल का experience कर लेते हैं, being associated with a company in implementing, helping them implement, not as an implementation partner, but they are implementing themselves and you are providing your manpower and expertise in helping them implement. So in that case, I think 3 years के experience ऐसे बना लेना better है. Yes, ma'am. Kindly proceed further. आप आगे continue कर. So is there any more questions, Bhavna? No, ma'am. अच्छा, तो अभी देखो यहाँ पे और तो कुछ है नहीं डिस्कशन का. बेसिकली इट इज अबाउट दिस सोशल स्टॉक एक्सचेंज का ही डिस्कशन था कि सोशल फंडिंग माने अभी जो है फंडिंग का जो रिस्ट्रिक्शन था CSR वाला, and CSR was getting like streamlined because companies have become more serious about their CSR spending, and they are not giving fund to just about anybody because implementation agency भी आज के डेट में एकदम strict definition आ गया है, जैसे भावना जी ने बोला, सॉरी सुधा जी ने बोला. So companies are aware of these things. पहले क्या है, शुरू में companies were not taking CSR seriously नहीं ले रहे थे, इसलिए किसी को भी दे रहे थे पैसा. I can see one hand raised, Bhavna, if you can just ask the person to speak. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Ma'am, I'm from Prayagraj. Okay. Can I speak in Hindi for better? Yeah, please. Thank you, ma'am. मैम आप लोग मतलब आपका सबका कन्वर्सेशन मैंने सुना. दरअसल मैं अभी एकदम नया हूँ, मैंने कल ही CSR पे अपना प्रोफाइल बनाया है, NGO हमारा जो है. तो अगर मुझे बिगनिंग करना हो तो कहाँ से सही रहेगा मेरे फर्म के लिए या जो मेरी सोसाइटी है, NGO है, उसके लिए? हेलो, I think Rupanshna ji का network Yeah. No. I'm there. ये म्यूट हो गया था. So आपका नाम क्या बताए, आप जो प्रयागराज से हैं? जी मैम, राकेश केसरमानी. Okay, so राकेश जी, actually it's really good that आप CSR में इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड आपने रजिस्टर किया. आपने कहाँ पे रजिस्टर किया? आपका क्या NGO का टाइप क्या है? सोसाइटी है, ट्रस्ट है, सेक्शन 8 कंपनी? सोसाइटी है मैम. ओके, तो पहले तो मैं आपको ये सजेशन करूंगी कि आप एक सेक्शन 8 कंपनी बना लो, बिकॉज क्या है, ये जो CSR का प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट में, CSR का प्रोविजंस में ना कुछ अमेंडमेंट, मैंने जहां तक हम लोग सुने हैं अमेंडमेंट आने वाला है, और हो सकता है फ्यूचर में ये ट्रस्ट और सोसाइटी अंडर कंपनीज एक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी में नहीं रहे, बिकॉज एज ऑन डेट है. और ये जो कंपनीज अमेंडमेंट बिल था जिसमें ये प्रपोजल था, अभी जो लेटेस्ट चेंजेस हुआ उसमें बिल में ना, बिल होता है जिसको माने आफ्टर द बिल इज पास्ड एक्ट बनता है.
जी, तो वो बिल में क्या था ना, ट्रस्ट और सोसाइटी नहीं था इस बार, खाली जी। सेक्शन 8 कंपनी था। बट जी। कोविड के टाइम में ट्रस्ट एंड सोसाइटीज ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए क्या हुआ, अल्टीमेटली जब एक्ट बना उनको फिर से वापस उसमें रखा गया। बट इन द नियर फ्यूचर ये बात हमको सुनने में आ रहा है, ये अभी ऑफिशियल नहीं है कि ट्रस्ट और सोसाइटी नहीं रहेगा, खाली सेक्शन 8 कंपनी रहेगा। इसका कारण यही है क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी एमसीए के अंदर होता है, मॉनिटरिंग में होता है, और सीएसआर जो एमसीए मॉनिटर कर रहा है उनके लिए सेक्शन 8 कंपनी को मॉनिटर करना इजी होता है, एंड ट्रस्ट एंड सोसाइटी को मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है। बट सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो बन रहा है उसमें कोई भी टाइप का एंटिटी, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, कंपनी हो, जो भी हो, वो कर सकता है वहां पे रजिस्टर। सो अगर आप ग्रेटर लेवल में दोनों चीज का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप सेक्शन 8 कंपनी ही बना लो। उसके बाद आप स्टार्ट करो धीरे धीरे, पहले तो छोटा छोटा काम करके स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टेकिंग बेबी स्टेप्स जैसे बोलते हैं, तो आप पहले एक एरिया चूज करो कि कौन सा एरिया में आपको इंटरेस्ट है काम करने का। सोशल डेवलपमेंट का काम बहुत सारे अलग अलग एरिया में होता है, जैसे मैंने बोला। सो ये जो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 में एक लिस्ट है एक्टिविटीज का। सो वो लिस्ट आप देखो कि आपको कौन सा एरिया सूट कर रहा है, बिकॉज एक तो एरिया पसंद आना चाहिए, दूसरा उस एरिया में आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, तीसरा वो पॉसिबल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग, मैं बोल रही हूँ, राजस्थान में बैठ के अगर मैं बोलूंगी कि इरिगेशन सिस्टम मैं बनाऊंगी, सो वो पॉसिबल नहीं है। मैंने जिस एरिया में जो पॉसिबल है तो उस एरिया में वो कर सकते हैं। तो बट राजस्थान में बैठ के हम लोग अगर बोलेंगे कि सोलर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू सोलर एनर्जी करेंगे, दैट इज पॉसिबल, वो हो सकता है आसाम में पॉसिबल नहीं हो। सो जिस ज्योग्राफिकल रीजन में जो पॉसिबल है वो और उसमें आपका कैपेबिलिटी है कि नहीं, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, पहले उस हिसाब से पहले चूज करो। चूज करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल, लेट जस्ट टेक अ इजी एग्जाम्पल कि आप स्कूल में, एजुकेशन में ही आप यस चूज मैम, किए। एजुकेशन में है, मेरा आईटीआई का कॉलेज है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में रन कर रहा हूँ ठीक है, वेरी गुड। तो एडुकेशन 3-4 ही साल अगर से। आपका है तो पहले यू स्टार्ट बाय गिविंग सम काइंड ऑफ फ्री क्लासेस, या फिर जैसे कि कुछ बच्चों का जैसे कि स्पॉन्सरशिप, एज एन एनजीओ यू ट्राई टू गेट स्पॉन्सरशिप फॉर सम चिल्ड्रन। कुछ बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप कंपनी से या इंडिविजुअल से आप इंतजाम करने का जरूरत ये करो, एंड उसको आप यू मेक दैट योर सीएसआर एक्टिविटी, कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए स्पॉन्सरशिप अरेंज करते हैं, ये सब करते हैं। सो देन जैसे कि यू कैन हैव आल्सो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, जैसे जो आईटीआई वगैरह है उसमें रात में अडल्ट लोगों का, जो लोग इलिटरेट है उनका क्लास करवाओ, उसमें यंग जनरेशन के बच्चों को इन्वॉल्व करो। जस्ट अ मिनट, हाँ, आई जस्ट टेक अ कॉल। हेलो, I am in the middle of a webinar. Huh? Talk to you later. So इसमें क्या होता है कि you have to माने टेक बेबी स्टेप्स में, छोटा छोटा स्टेप लेके उसको हमको 3 साल का एक्सपीरियंस खड़ा करना होता है। एंड 3 साल का एक्सपीरियंस जब हो जाता है, और हर एक स्टेप का एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है कि मैं ये कर रहा हूँ। सो जैसे कि मैंने कोई कंपनी को लिखा कि मेरे इतने बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप का जरूरत है, आप कुछ करिए, दान करिए, ये करिए। तो मैंने 1000 जन को लिखा, उसमें से 10 जन का पॉजिटिव रिप्लाई आया, तो उसको रखिए। जो आपने लिखा उसको भी डॉक्यूमेंटेशन में रखिए। जो रिप्लाई आया, जिसने सच में स्पॉन्सर किया, वो बैंक स्टेटमेंट, उनका रिप्लाई वगैरह वो सब रखिए। फिर जो बच्चों को दिया गया स्कॉलरशिप, सो उनको भी उसको भी रखिए आप अपने पास। ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखना चाहिए परफेक्ट, ताकि हम दिखा पाए फ्यूचर में कि हमने किया ये काम। सो ये 3 साल तक अगर हम लोग कर सके, देन हम लोग जाके सीएसआर फंडिंग के लिए हम लोग एलिजिबल
एलिजिबल होंगे। और जब तक हम लोग एलिजिबल नहीं होते हैं प्रॉपर CSR फंडिंग के लिए, तब तक हम लोग खाली कंपनीज को हेल्प कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कॉलरशिप वाला ही मैं एग्जांपल देती हूँ, तो कोई भी कंपनी स्कॉलरशिप अगर किसी को देना चाहेगा, या फिर कोई एक बच्चे का अगर स्टडी स्पॉन्सर करना चाहेगा, तो द कंपनी विल लाइक टू पुट दिस इन इट्स CSR एक्टिविटी। तो वो CSR एक्टिविटी में, क्योंकि आपका 3 साल एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, वो आपका नाम दे पाएगा, आप CSR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका नाम नहीं दे पाएगा। लेकिन क्योंकि ये आपके थ्रू आया है, कंपनी अपने रिकॉर्ड में कंपनी का नाम ही लिखेगा कि डायरेक्टली हमने इस लड़के को दिया, ये इस NGO के वाया आया था। सो एज अ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी आपका नाम उसमें कंपनी का रिकॉर्ड में नहीं रहेगा, बट आपके पास अपना रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि 3 साल के बाद आप ये डॉक्यूमेंटिंग के बेसिस पे आप उसको कर पाए। ठीक मैम, ठीक, थैंक यू। और CSR 1 जब 3 साल हो जाए ना, 3 साल हो जाने के बाद CSR 1 एक फॉर्म आता है, उसके बाद तो ये होता है ना कि 12A एंड 80G का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है, वो तो आप अभी ले सकते हैं। एंड वो हुआ मेरा ना बैटरी लो हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू लॉग इनटू अनदर फ्रॉम माय मोबाइल। सो एक बार मैं कोशिश करती हूँ। भावना, just check, I'm trying to enter. Okay, ma'am. Okay, ठीक है। So I'm logging off from here, huh? जी मैम। Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. So ये अभी आज के डेट में 12A and 80G आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड मैंने लेना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने के बाद फिर जब 3 साल हो जाएगा, CSR 1 फॉर्म भी फाइल कर सकते हैं। सो देन प्रॉपरली एलिजिबल होंगे। तब तक 3 साल के बाद, तब तक बहुत मैच्योर्ड हो गया होगा हमारा जो CSR का जो इंडस्ट्री जो है, माने CSR का रेगुलेशंस जो है, तब तक सोशल स्टॉक एक्सचेंज का स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड आ जाएगा। एंड देन तब तक ये भी पता चल जाएगा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लिस्टिंग किया जाता है, कौन कौन कर रहा है। एंड आपका जो ये है, यू ट्राई टू गेट दिस लिस्टेड इन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो। पहले मूवर का क्या एडवांटेज है, एक बार रूल आ जाता है तो भावना, व्हाट वी कैन डू इज व्हेन द रूल्स, डिटेल रूल्स कम्स, वी कैन हैव अनदर सेंसिटाइजिंग सेशन फॉर ऑल द NGOs, जहाँ Yes. पे क्या रेगुलर है, माने रेगुलेशंस एक्चुअली क्या बने, उसके बेसिस पे आई कैन ट्रेन अप कि आप लोग कौन क्या कर सकता है। Yes. So I think there is another question, no? Yes. Do you see the possibility of MSW graduates from leading academic institutions like TSS being hired for employment opportunities at the social stock exchange? Social stock exchange में तो I don't think so, because social stock exchange is basically a stock exchange. उसमें social work का कुछ नहीं है। Social stock exchange में only professionals will be hired, because ये stock exchange ही है। But MSW का जो आप बोल रहे हो, वो companies के CSR department में काफी opportunities है। सो बिकॉज बहुत सारे कंपनीज में मैंने रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी थी, जहाँ पे लाइक हायरिंग होता है फॉर द CSR डिपार्टमेंट। तो CSR डिपार्टमेंट में दे ऑलवेज लुक फॉर MSW कैंडिडेट्स ओनली। बट MSW होने के बाद भी कंपनीज एक्ट का जो CSR का प्रोविजंस है, और आज की डेट में जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का प्रोविजंस है, मेक श्योर दैट यू नो दिस प्रोविजंस वेरी वेल। क्योंकि मुझे याद है जब भी मैंने इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू बोर्ड में सारे MSW स्टूडेंट कैंडिडेट ही थे, लेकिन उन्हीं को चूज किया गया जिसको कंपनीज एक्ट का CSR प्रोविजंस बहुत अच्छी तरह से मालूम है, और आज के डेट में सोशल स्टॉक एक्सचेंज का भी एक्सपीरियंस, माने आइडिया अच्छी तरह से उसको होना चाहिए। प्लस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर डेवलपमेंटल सेक्टर में है, माने रियल लाइफ एक्सपीरियंस, नॉट द इंटर्नशिप वगैरह, सो वो भी काम आएगा। सो MSW के लिए तो ये अच्छा तो है ही। सो लुक फॉर कंपनीज, स्पेशली PSUs वगैरह में यू कैन ट्राई। बड़ा PSUs तो CSR डिपार्टमेंट उनका होता ही है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू द
मिनिस्ट्री एमसीए का वेबसाइट है, उसमें एक पोर्टल है CSR पोर्टल, csrportal.gov.in बोल के ऐसा कुछ है। सो उस पोर्टल में टॉप जो कंपनीज जो CSR में स्पेंडिंग कर रही है देश में, सो उनका नाम है। सो वो नाम देख के आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज टॉप कंपनीज जो है 500, 600, 700, 1000 करोड़ तक स्पेंड कर रहे हैं CSR में। सो इनका मतलब ये है कि उनका बहुत सारा लाइक social work related लोग उनको चाहिए। So you can apply to those companies also. So that's all I can say in this regard. One more question. Ma'am, our organization is registered in December 2020 as a Section 8 company, and we have all the certificates like 12A, ATG and CSR1, but still we are facing challenges in getting CSR grants. Right now we are doing, yes, ma'am. Yeah, no, so the thing is, the first conception, the question itself has the problem there. CSR ग्रांट नहीं होता है। CSR माने ग्रांट मतलब क्या हुआ, वो डोनेशन हो जाता है। So CSR by definition is not a grant. तो that has to be, माने वो दिमाग में माने घुसाना बहुत जरूरी है। CSR एक ग्रांट नहीं है, CSR is not a funding, CSR is not a donation. CSR is just हम implementation, you as a organization that has registered itself and got 12A ATG and CSR1 can only wait for can only help an organization as an implementation agency of their CSR projects. So वो हमारे माने आपका जो एरिया है, जिस एरिया में आप स्पेशलाइज करते हो, उस एरिया में काम, आपका बेनिफिट ये है कि आप जो काम करना चाहते हो समाज सेवा के लिए, वही काम करने के लिए कोई और स्पॉन्सर कर रहा है आपको। सो स्पॉन्सरशिप के हिसाब से क्या है, यू गिव द प्रोजेक्ट प्रपोजल टू देम एंड दे गिव यू मनी इन ट्रांचेस, बट वो ग्रांट के हिसाब से अगर आप समझोगे, सो दैट इज नॉट राइट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो वो अंडरस्टैंडिंग में ही गलती है। हम लोग सोचते हैं कि मुझे एक 10 लाख का प्रोजेक्ट है, कंपनी को जाएंगे, उनका 1 करोड़ का CSR बजट है, वो हमें 10 लाख दे देगा, हो जाएगा। अभी तक वो होता था वैसे, कंपनीज 10 लाख का मैंने अप्रोच करने से उनको प्रोजेक्ट अच्छा लगता था, अच्छा रिलेशन है, कोई एक अच्छा कनेक्शन है तो मिल जाता था। लेकिन आज के डेट में जो लोग ऐसा देंगे, या तो उनको CSR के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है अच्छे तरह से, या फिर वो लोग गलती करेंगे, क्योंकि CSR लॉ से पेनल्टी हो जाएगा आपको कि अगर आप ऐसे दे दिए। क्योंकि मैं एग्जाम्पल मैं समझा के बताती हूँ ये जगह पे। मान लीजिए आज के 2022-23 फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आपको कोई एक प्रोजेक्ट के लिए आपको 10 लाख रुपए के लिए आपने अप्लाई किया कोई कंपनी को, कंपनी का 1 करोड़ का CSR बजट है, उसने सोचा ठीक है ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम 10 लाख रुपए दे देते हैं एंड दे विल डू द प्रोजेक्ट। सो आपका जो प्रोजेक्ट है वो 2-3 साल चला फॉर एग्जाम्पल, तो 31 मार्च 2023 जब आता है, वो कंपनी आपसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगेगी, बिकॉज आज के डेट में कंपनी के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी, वो उसको देना ही पड़ेगा। तो कंपनी का जो CFO है वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देता है। तो वो जो काम उसने आउटसोर्स कर दिया, किसी और को दे दिया, जैसे इस मामले इस सिचुएशन में आपको दे दिया, वो काम वो उसके लिए वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वो खुद कैसे देगा, वो आपसे मांगेगा, आप उसको देंगे और उसके बेसिस पे वो देगा कंपनी को। सो आप अगर बोल रहे हैं कि मैंने 10 लाख रुपए जो मुझे मिला था वो तो 2-3 साल लगेगा मुझे खर्चा करने में, उसमें से 2.5 लाख ही खर्चा हुआ है। सो 2.5 लाख खर्चा हुआ है, आप उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उसको दोगे, सो उससे उसका कैसे होगा, तो फिर उसको 7.5 लाख रुपए आपको वापस करना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में जो है कंपनी का ये जो अनस्पेंड CSR अकाउंट है उसमें पैसा रखना पड़ता है, एंड गवर्नमेंट इज कीपिंग अ मॉनिटरिंग आई ऑन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। सो आज के डेट में अगर आप 7.5 लाख एक्स्ट्रा रखे, 10 लाख रुपए ले लिए और 2.5 लाख का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिए, तो 7.5 लाख उसके अकाउंट में दिखाएगा कि उसने स्पेंड नहीं किया, वो बैंक में भी जमा नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास है नहीं, वो तो आपके पास पड़ा है। एंड यू एज एन NGO यू कैन नॉट गिव इट बैक, क्योंकि NGO का काम करने का तरीका अलग होता है।
सो उसको ईयर एंड में जाके इसका डबल अमाउंट जो कि 15 लाख रुपए है उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। सो उसने आपको दे दिया 10 लाख रुपए और उसको 15 लाख पेनल्टी देना पड़ा। सो उस अल्टीमेटली उसको 25 लाख खर्चा करना पड़ा किस काम के लिए, जो 10 लाख रुपए में हो जाता। सो आज के डेट में कोई भी कंपनी जो ये समझता है पेनल्टी आने के बाद ऐसा ग्रांट के हिसाब से तो CSR फंडिंग देगा ही नहीं। सो एनजीओस का जो मेंटालिटी है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट सबमिट करते हो कोई भी एक कंपनी को, आपको ये समझ के चलना चाहिए कि हमको स्टेज बाय स्टेज देना है। जितना काम हम इस साल में कर पाएंगे उसी का हम प्रोजेक्ट प्रपोजल देंगे और कंपनी को भी वो अमाउंट ट्रांचेस में देना चाहिए ताकि माने जितना वो देता है उस पूरा का ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उसको मिल जाए, नहीं तो कंपनी के लिए फालतू का नुकसान है। सो ये चीज है, आपको CSR फंड ये कंटिन्यूअस बेसिस पे कंपनीज के साथ आपका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा जैसे पहले भी करना पड़ता था। यू मेंटेन you walk the path shoulder to shoulder with the companies and you are the implementation partner of the company जैसे कि कोई कंपनी का एसोसिएट होता है आप ऐसे एसोसिएट है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर ग्रांट और डोनेशन फ्रॉम कंपनीज CSR में पॉसिबल नहीं है, शुरू से कभी भी पॉसिबल नहीं था। CSR जब से लॉ बना है तब से ही बोला गया है CSR एंड डोनेशन इज नॉट द सेम थिंग। सो कोई कंपनी अगर डोनेशन देना चाहता है वो अलग बात है, बट उसको वो CSR के अंडर बुक नहीं कर सकता है। So what I mean to say is that NGOs को भी प्रोफेशनलिज्म उसमें लाना है, उनमें उनका भी प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आना चाहिए so that कंपनी का भी नुकसान नहीं हो, उनको भी फंडिंग मिल जाए। Next question is, right now we are doing awareness activities on plastic waste and e-waste, health and hygiene and IEC activities. We are also doing school awareness program, but all are free of cost. Sudha Kumari ji, I think your question is not clear here. Sudha ji? I think what she wants to say is they are doing these awareness campaigns and कोई कॉस्टिंग नहीं है, ये चैरिटेबल एक्टिविटी है, चैरिटेबल एक्टिविटी है एंड दे आर स्पेंडिंग द टाइम बट खर्चा नहीं हो रहा है, तो इसको वो लोग मोनेटाइज करने का बात कर रहे हैं। सो मे बी इफ शी कैन स्पीक अप, सुधा कुमारी जी इफ यू कैन स्पीक अप, आप बताइए आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं। Yeah, hello ma'am, good afternoon. Hi. हाँ मैम, मैं एक्चुअली ये बताना चाह रही थी कि हमारी जो NGO है वो एज अ सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है हमने, एंड हम सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं बेसिकली क्लाइमेट को लेके, वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बट हमारे पास सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं, बट ओनली फॉर 3 ईयर ऑब्लिगेशन के कारण कहीं से भी हमें CSR फंडिंग नहीं मिल पा रही है। तो इस केस में हम क्या करें? फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं, बट उसको हम दिखाएंगे कैसे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसकी एनुअल रिपोर्टिंग करनी होती है हमें या फिर एनुअल टर्नओवर दिखाना होता है तो हमारी इनकम तो जनरेट नहीं हो रही है, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? नहीं, इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो एक्टिविटी जो है उसमें कहीं ना कहीं पैसा तो आपको लाके करना पड़ेगा ही। सो बहुत केसेस में क्या होता है कि कंपनीज के जो जो ट्रस्टीज जो होते हैं, जो NGOs के ट्रस्टी हैं, तो वो ट्रस्टी ही उसमें पैसा देते हैं एंड उसी से उसका अकाउंट्स बनता है। So that is also done in many cases. तो आपके केस में वैसा ही कुछ करना पड़ेगा कि पैसा डालना पड़ेगा and then you have to approach companies छोटा फंड के लिए, थोड़ा not under CSR but थोड़ा छोटा ग्रांट के लिए, माने नॉट ग्रांट, तो छोटा माने स्पॉन्सरशिप के लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा, वो बुक्स में दिखाना पड़ेगा। मैम हमने जो जैसा कि आपने बताया कि हम डोनेशन मांग सकते हैं उनसे या स्पॉन्सरशिप मांग सकते हैं जो हमारे ब्रांड है या फिर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब हम उनको अप्रोच करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हमारी खुद की फाउंडेशन है, हम उनको क्यों ना दे पैसे, हम आपको क्यों दे। हाँ, नो दैट इज वही मैं बोल रही थी। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे डाबर को कांटेक्ट किया है, डाबर हमारा एक ब्रांड है, उनके साथ हम
ई वेस्ट और सॉरी प्लास्टिक वेस्ट के लिए काम करते हैं। बट अगर हम उनकी पास जाके ये कहते हैं कि हमारी एक एनजीओ है और हमें इसके लिए आपसे स्पॉन्सरशिप चाहिए या फिर एज ए डोनेशन हम आपके वॉलेंटियर आपके एम्प्लॉयों के लिए एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हम खुद करेंगे, हमारा खुद का CSR विंग है, हमारी खुद की फाउंडेशन है, तो हम आपके थ्रू क्यों करें। नहीं, वही मैं तो बोल रही हूँ। ये एक डिफिकल्टी मतलब रेगुलर बेसिस पे आ रही है, तो इसके कारण भी फंडिंग की इशू है। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि जिस कंपनी का अलग सा CSR डिपार्टमेंट है ना, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो कंपनी खुद करता है इम्प्लीमेंटेशन उसके अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, या फिर किसी किसी केस में अपना फाउंडेशन होता है, जैसे कि रिलायंस फाउंडेशन हम सबको मालूम है। रिलायंस कंपनी सबसे ज्यादा CSR में स्पेंडिंग करती है। 1100 यस 1100 करोड़ लास्ट ईयर में उसका CSR स्पेंडिंग था। लेकिन रिलायंस का कोई भी काम तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी नहीं करता है, वो अपना जो रिलायंस फाउंडेशन है वही खुद करता है। सो बड़ा जो कंपनीज है उनका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होता है, माने अपना टीम होता है, डिपार्टमेंट होता है, या फिर अपना फाउंडेशन होता है। सो आपको उन कंपनीज को बेसिकली अप्रोच करना है जिनका अपना CSR डिपार्टमेंट नहीं है और जो CSR में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, सो बट उनका CSR फंड है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज कंपनीज जिनका CSR फंड है लेकिन CSR डिपार्टमेंट या CSR पर्सनल कंपनी में नहीं है। क्योंकि किस कंपनी में अगर CSR किसी ने किसी को एम्प्लॉय करके रखा है तो दे विल ऑलवेज वांट कि उसका सैलरी एटलीस्ट मेरा माने आई शुड बी paying this person money and that person should be delivering to me। तो उसमें भी अगर बाहर का कोई आके पैसा मांगे, बाहर जाके काम होगा, तो मैं फालतू इसको बैठा के क्यों पैसा दे रहा हूँ। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कंपनीज अकॉर्डिंगली। माने ये थोड़ा नेटवर्किंग से करना पड़ेगा। पर्सनल आपका लोकेशन जहां भी है, वेयर आर यू बेस्ड? मैम गुड़गांव। गुड़गांव। सो जहां भी आप बेस्ड है वहां पे जो आपका नेटवर्क है ना, तो नेटवर्क में ही आपको फैलाना पड़ेगा कि वी आर डूइंग CSR। कोई भी कंपनी का जो जो छोटा छोटा CSR बजट है, तो उसमें आप हमसे करवाइए, हमारा ये सब कुछ रजिस्ट्रेशन है, हम करके देंगे। एंड एक और चीज है, जो आपका जो स्पेशलाइजेशन है जिस एरिया में, सो वो एरिया भी अगर जिस कंपनी में वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अच्छा लगता है लेकिन उनका उस एरिया में स्पेशलाइजेशन नहीं है, जो कि इन योर केस डाबर का एग्जांपल आपने दिया, तो डाबर के पास वो ऑलरेडी है, वो खुद करना चाहते हैं। तो बहुत कंपनीज हैं जो कि ये आपका काम उनको अच्छा लगेगा लेकिन उनके पास इसका स्पेशलाइजेशन नहीं है, सो वो लोग आउटसोर्स करना चाहेंगे। सो ये आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, ये देयर इज नो अदर ऑप्शन इन दैट। थैंक यू मैम। और कोई है जो जिसके पास कोई क्वेरी है या मैम से कोई डिस्कशन है? सो मैम, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में डू वी हैव एनीथिंग मोर टू डिस्कस हियर? I think there is one question. Are there other countries in the world where such social stock exchange infrastructure exists? So social stock exchange मेरे ख्याल से है बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारे कंट्रीज में सोशल स्टॉक एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे कंट्रीज में ये सिस्टम फेल भी हुआ है, बट माने इट इज देयर। आई थिंक सिंगापुर में है, साउथ अफ्रीका में है, ऐसे कुछ कंट्रीज में है। जमैका में था बट वो इट हैज फेल्ड देयर। सो ऐसा सोशल स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे कंट्रीज में है। बट ये जो सोशल ऑडिट की मैंने बात किया, सोशल ऑडिट इंडिया में ही फर्स्ट माने सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड जो हम बना रहे हैं अंडर सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाला जो गाइडलाइंस, तो वो इंडिया में पहली बार बन रहा है। यस भावना, यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन? Yes, ma'am. Do we have anything more to discuss here for social stock exchange? I don't think so because क्या है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज अभी बहुत नेसेंट स्टेज में है, बहुत कुछ नया आएगा। एंड जब आएगा तब मेरे ख्याल से, क्योंकि जब शुरू होगा ना, शुरू के टाइम में बहुत कुछ क्वेरीज होता है एंड समझने के लिए बहुत कुछ होता है। सो देन मे बी वी कैन हैव अनदर सेशन एज अ फॉलो अप ऑफ दिस सेशन एंड वी विल डिस्कस मेनी मोर थिंग्स देन। सो आज के डेट में तो जितना था हम लोग सब डिस्कस
कर भी लिए, questions भी बहुत relevant थे, अच्छे questions थे, and we have discussed on that also. So that's it. I think from my end, there's nothing more. Hello, ma'am. Yeah, please. Yes. This is Pratima Jain from Alanco from Hyderabad. Ma'am, I want to raise one question. Yes, please. And on social stock exchange, that the NGO can raise funds through zero coupon, zero principal bond. That I have read that zero coupon bond is transferable. Yes. And if it is transferable, and when I am raising fund through I'm company and I'm raising fund through NGO, that zero coupon bond I have this time, but now when I'm transferring it, what about the exemption which I got earlier? Exemption, acha. No, but that also, like we have not yet got the regulations, the rules, because uska bhi rules aayega. Uska issue ke liye jo rules hai, that will also come. So whenever there is any new type of security, there are guidelines on issue of that also. So uska bhi aayega, SEBI regulations aayega. So we have to wait for that. Okay, ma'am. Thank you so much. Ma'am. Yeah, development in this area is in a very nascent stage. So, these are just definition phase. So, थोड़ा concept phase था, तो जितना है हम लोग discuss कर लिए, but that question of Pratima is a relevant question. So, it has to be seen कि इसका क्या होगा. I think, I would say कि जिस financial year में है, मेरे पास है, उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर में अगर उसको मैंने इफ आई एम ट्रांसफरिंग इट, सो ये वही शॉर्ट टर्म, इसमें तो गेन का कुछ वैसे है नहीं, क्योंकि टैक्सेबिलिटी कैसे आएगा, बिकॉज इफ आई एम बाइंग, सो फार एज आई नो टिल डेट, मैंने जो आई एम नॉट गेटिंग एनी interest on that bond. So if I'm not getting any interest on that bond, there is no earning, and I am when I am selling that, I'm asking about the tax exemption which is, yeah, so that's what I'm saying. Tax to earning pe hota hai na. So when I am buying, let's say for 1000 rupees का bond मैंने खरीदा, फिर मैंने उसको सेल कर दिया, मुझे तो 1000 का ही मुझे खर्चा रखना पड़ेगा, बिकॉज वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है. सो आई कैन सेल दैट ऑन फेस वैल्यू ओनली. राइट. तो अगर 1000 का मैंने 1000 में ही बेचा, तो आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉफिट, तो उसमें टैक्स कहाँ से आएगा? ओके मैम. देयर इज नो गेन ना, सो टैक्स कहाँ से आएगा? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. So, Bhavna, I think that's it. Can we conclude? Yes, ma'am, we can conclude it here. Thank you so much for your valuable inputs and insight into the subject. Thank you so much. And I also enjoyed speaking, and the questions were really good. And Yes. let's wait for the things, the regulations to come, and we can always have a next session after that. Okay. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. ma'am.